Good morning, class 9th. Today we have studied chapters lines and angles. In previous section, you have to study about the different types of angle. In this part, you have studied the parallel lines and transversal. Okay. Exercise 6.2. Okay. Parallel lines and transversal. Parallel lines. What is parallel lines? Are two lines having the distance between them is always same is called as a parallel lines. Okay, in this figure AB and CD are two parallel lines. Okay, and PQ is the transversal line which cut these two parallel lines at point M and N. Okay, it's make a 8 angles like that: angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4, angle 5, angle 6 and angle 7 and angle 8. You have to study about the properties of angles and the relation between these angles. Okay, first angle is corresponding angles. First angle is corresponding angles. Corresponding angles are equal. In the given figure, what is the corresponding angles? Angle 5 and angle 1. Angle 1 and angle 5 are corresponding angle. It's about the parallel lines and it's lie on the same sides. And another side, angle 2 and angle 6 are corresponding lines. As similarly, angle 4 and angle 8, angle 3 and angle 7 are the corresponding angles. Corresponding angles are equal, so you have to write down here angle 1 is equal to angle 5 and angle 2 is equal to angle 6. इस अपर पार्ट है एंगल 1, 5 एंड 2 से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एंगल 1, 5 और 2 से ये क्या है दोनों लाइन के ऊपर दिए गए और दोनों एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 and angle 2 is equal to angle 6. It is the upper part of the parallel lines. Similarly, angle 4 is equal to angle 8 and angle 3 is equal to angle 7. This is the lower part of the given parallel lines. These are the corresponding angles. Next type of angle is the alternate interiors angles. Alternate interior angles, look in the figure. Alternate interiors angle. Alternate मतलब क्या होता है अपोजिट होता है. इंटीरियर मीन्स क्या होता है अंदर. तो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर और दोनों क्या हो दूसरे का अपोजिट हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. On the given figure, angle 3 and angle 5 are alternate interior angles. Similarly, angle 4 and angle 6 are alternate interiors angle. Alternate है 4 और 6 के अपोजिट है. इंटीरियर मीन्स दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है. दिस इज द alternate interiors angle. And alternate interior angles are equal. So angle 4 is equal to angle 6 and angle 3 is equal to angle 5. Next type of angle is alternate exterior angles. Alternate exterior angles. Alternate मतलब क्या अपोजिट, एक्सटीरियर मतलब क्या हो पैरेलल लाइन के बाहर हो. तो लुक इनटू फिगर angle 1, look into figure angle 1 and angle 7 are alternate exterior angles. Similarly, angle 2 and angle 8 are the alternate exterior angles and both are equal. So write down here angle 1 is equal to angle 7 and angle 2 is equal to angle 8. This is the alternate interior angles. Now next type of angle is the co-interior angle. Co-interior angles means को मतलब एक ही साइड हो. इंटीरियर मीन्स क्या होते हैं अंदर के तरफ. ओके, तो इन द गिवन फिगर को इंटीरियर एंगल्स को मीन्स एक साइड जैसे 4 and 5 है ये क्या है को है एक साइड है एंड दोनों क्या है दोनों पैरेलल लाइन के एक साइड दिए गए हैं बीच में दिए गए हैं. दिस इज द इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स 4 and 5, 3 and 6 आर द को इंटीरियर एंगल्स. ओके, 4 और 5 क्या है और 3 और 6 दोनों क्या है को इंटीरियर एंगल्स हैं. 4 और 5 को इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड 3 and 6 आर द को इंटीरियर एंगल्स एंड द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. दिस इज अ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी. So you have to write down in the copy. Co-interior angles sum is 180 degree. So angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree and angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree.
Now come to exercise 6.2. Exercise 6.2, in the given figure 6.28, find the value of x and y, then show that AB is parallel to CD. यहाँ पे देखिए दिया गया एक्सरसाइज, आपको बुक दिया हुआ एनसीईआरटी की बुक है, एक्सरसाइज 6.2. इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. Okay. Firstly, you have to find the value of x and y. So, in question number 1, look here, you have to find the value of x and y. Angle y and angle 130 degree are vertically opposite angles. In the last section, I tell you about the vertically opposite angles, and vertically opposite angles are equal. So, in the given figure, angle y is equal to 130 degree by vertically opposite angle, by vertically opposite angle, by vertically opposite angle. Vertically opposite angle जो होती हैं, its are equal. Okay. Now in the given figure, x and y, x और y क्या है? देखिए, या तो आपको दिए गए हैं 4 टाइप के एंगल्स जो दिए गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स. तो एक्स और वाई किस टाइप के एंगल्स हैं? लुक हियर, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन के अंदर दिए गए और दोनों क्या है, दूसरे के अपोजिट है. सो एक्स वाई आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सो angle x is equal to, write down here, angle x is equal to angle y. यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिएगा, बाय किससे है ये हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों इक्वल हो गए. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो एंगल x इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 130 डिग्री. दोनों क्या हो गए, एंगल x भी कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया. ओके. बट इन दिस क्वेश्चन you have to not use the directly alternate interior angles property, because in this question you have to show that the line AB is parallel to CD. हमें ये लाइन AB और CD पैरेलल नहीं दी गई हैं, so we cannot use the properties of the parallel line थ्योरम्स. ओके, पैरेलल लाइंस की हम लोग प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते. पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स. सो दिस पार्ट को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेलल लाइंस थ्योरम. वर्टिकली अपोजिट एंगल सीखे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी में नहीं आता है. सो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो x की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए, लुक हियर, ये जो लाइन दी गई है, लुक इन द लाइन, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन है. और यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल 50 और एंगल x है, दोनों स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है. तो दिस इज स्ट्रेट लाइन एंगल, और स्ट्रेट लाइन एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री. सो ये हमारी क्या है, दिस इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन. दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल. दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइंस. और यहाँ पे देखिए 50 और x, दिस इज द एडजेसेंट एंगल. एंड एडजेसेंट एंगल का जो स्ट्रेट लाइन में एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. सो राइट डाउन हियर, एंगल 50 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय स्ट्रेट लाइन एंगल, बाय स्ट्रेट लाइन angles. Okay, so you have to find the value of x. Angle x is equal to 180 minus 50. So angle x is equal to, इसमें subtract कर देंगे, we have get 130 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल x कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया. so look into the कॉपी में वैल्यू पुट कर देते हैं. एंगल x कितना आया, 130 आया, और y कितना हमारा आया था, यू हैव टू लुक हियर, y हमारा क्या था, 130 डिग्री. यहाँ पे लुक हियर,
देखिए x और y की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है, 130 डिग्री आ रही है। ये तभी पॉसिबल होगा जब जो हमारे लाइंस है वो क्या हो, पैरेलल्स हों, और ये जो लाइंस होगी दिस इज अ ट्रांसवर्सल, दिस इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। राइट है, angle x is equal to angle y, so line AB is parallel to CD by the property of in by the property of alternate interiors angle. Okay, write down alternate interior angles, alternate interior angles. ओके, जब दोनों एंगल्स हमारे ये और ये एंगल क्या होगा, दोनों क्या होगा 130 डिग्री हो गए हैं, और ये दोनों एंगल्स इस टाइप के हैं, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए हैं, सो लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इन द गिवन एक्सरसाइज, इन फिगर 6.29, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and YZ ratio of YZ is equal to 3:7, then find the value of X. Okay, got it? यहाँ पे दिया गया है, आपको फिगर दिया गया है, लुक इनटू द फिगर्स, AB is parallel to CD, AB क्या है, CD के पैरेलल है, और CD क्या है, EF के हमारे पैरेलल दिया गया है, YZ में रेशियो दिया गया है 3:7 का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो लुक इन द फिगर, y और ये दिस एंगल, देखिए ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, दिस अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम लोग मान लेते हैं, कोई सिंबल मान लेते हैं, लाइक हमने मान लीजिए P मान लिया, दिस इज अ P। ओके, सो y और P दिस इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखिए, ओके, नेक्स्ट वाई जेड का रेशियो दिया गया है, लुक हियर, y और z का हमें रेशियो दिया गया, दिस रेशियो इज 3:7, वाई जेड का हमको रेशियो दिया गया 3:7, सो लेट एंगल y इज इक्वल टू 3x डिग्री एंड एंगल this is z, angle z is equal to 7x. Okay, in the given figure y and p are vertically opposite angle. Look here, यहाँ पे करेंगे angle y and angle p are, let me know, ये है, are vertically opposite angle, are vertically opposite angles. Angle y and angle p are vertically opposite, angle y and angle p are vertically opposite angles. So, and vertically opposite angles are equal, and vertically opposite angles are equal, so angle p is equal to angle y. So angle p is equal to y, यहाँ से हम लोग ले लेंगे एंगल y कितना दिया गया 3x, तो एंगल p is equal to कितना हो जाएगा, दिस इज अ 3x हो जाएगा। ओके, नाउ लुक इनटू फिगर, टेक लाइन CD and EF. CD and EF are the parallel to each other. CD line and EF lines are parallel to each other. Then look here, angle P and angle Z. Angle P and angle Z are co-interior angle because it's lie on the inside the parallel lines and lie on the same side of the transversal line. And the sum of co-interior angles are 180 degrees. So write down here, take line CD is parallel to EF, take line CD is parallel to EF, angle P and angle Z are co-interior angles, co-interior angle, and you have to know that sum of co-interior angles is 180 degrees. So angle P plus angle Z is equal to 180 degree. Angle P is given as 3x, angle Z is given as, angle Z क्या दिया गया 7x दिया गया, तो right here angle Z is equal to
7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे, 7 से कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, सो x इज इक्वल टू 18 डिग्री। 0 कैंसिल हो जाएगा, सो गेट x इज इक्वल टू 18 डिग्री। ओके, दिस इज योर ओके। देन फाइंड एंगल y एंड एंगल z। एंगल y और एंगल z को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एंगल y इज इक्वल टू कितना है 3x है, सो राइट हियर 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 18 कितना है 3 8 इज 24 टू 54 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू गिवन इज 7x, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 18, 7 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 या 56, 5 7 7 126 डिग्री। ओके, तो एंगल y कितना आ गया 54 आ गया, और एंगल z कितना आ गया 126 डिग्री आ गया है। तो लुक इट टू फिगर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो वी हैव टू टेकन द लाइन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी में देखिए x और y क्या है, दोनों क्या है सेम साइड दिए गए हैं, एंड एक्स वाई आर द को इंटीरियर एंगल्स। तो लुक हियर, टेक लाइन take line AB is parallel to CD. Okay, AB is parallel to CD, and angle X and angle Y are co-interior. Angle X and angle Y are co-interior angles, and its sum is 180 degrees. Angle X plus angle Y is equal to 180 degrees. So angle X plus, you have to find the value of angle Y. Angle Y is 54. So write down here 54 is 180 degree. You have to minus that. Angle X is equal to 180 degree minus 54. यहाँ पे एंगल x हमारा कितना था 180 में से 54 को हम लोग माइनस कर रहे हैं, 10 में 4 के 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 1। सो दिस इज 126 डिग्री। So this is the answer of the given question, and angle x is equal to 126 degree. Now take question number 4. In figure 6.31, if PQ is parallel to ST, जो PQ line है this is parallel to ST, and angle PQR is 110 degree, PQR is 110 degree, and angle RST is 130 degree. Then find the value of QRS. हमें इस एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। QRS, दिस इज द फाइंड द एंगल ऑफ QRS. सो नाउ जो हमारी लाइन PQ और ST इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। यू हैव टू एक्सटेंड इट बाय डॉटेड लाइन। ओके, सिमिलरली इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। यू हैव टू एक्सटेंड द ST line. Now from point R you have to draw a line parallel to PQ और ST। किसी भी एक लाइन के पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। Let from point R you have to draw a line parallel to PQ। एक हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं which is parallel to PQ। ओके, एक नाम MN, इसको नाम दे देते हैं MN दे देते हैं। तो ओके, सो लाइन, तो फ्रॉम पॉइंट R you have to draw a line MN which is parallel to PQ or ST. So write down draw line MN which is parallel to PQ ST. Okay, from point R you have to draw a line MN which is parallel to PQ और ST। किसी भी एक लाइन के पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर PQ पहले कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो ST के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज PQ और ST लाइन क्या दी गई, पैरेलल दी गई हैं। नाउ अब इसको सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दैट। टेक लाइन PQ एंड MN। फर्स्ट हम लोग पॉइंट लेते हैं, टेक लाइन PQ and MN
विच इज आर पैरेलल, दोनों लाइन क्या है पैरेलल दी गई, पी क्यू एंड एम एन आर पैरेलल, दोनों लाइन क्या दी गई है पैरेलल दी गई है, पी क्यू और एम एन लाइन क्या है पैरेलल है। सो एंगल 110, so let here this angle अगर 110 डिग्री और इस एंगल का हम कुछ नाम देते, मान लीजिए हमने ए दे दिया, इसको नाम दे दिया एंगल ए दे दिया, दोनों क्या है, दोनों देखिए लाइन पैरेलल है, और इसको हम लोग मान लेते हैं अगर क्यू आर को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो एंगल 110 और ए दोनों क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, एंड द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। ओके, सो एंगल 110 and angle A are co-interior angles. So angle 110 plus angle A is equal to 180 degree. So angle A is equal to 180 degree minus 110 degree. So angle A is equal to कितना जाएगा 70 degree. You have to get the angle A is the 70 degree. Now take another line. We have taken the ST and take a MN और ST को फिर से लेंगे तो 130 डिग्री, और ये एंगल अगर इसको मान लेते बी मान लेते हैं तो बी और 130 डिग्री भी क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल जाएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। सो टेक नेक्स्ट ले लेते हैं, टेक ST पैरेलल टू MN, तो एंगल 130 डिग्री एंड एंगल बी आर को इंटीरियर एंगल्स एंड इट्स सम इज कितना होगा 180 डिग्री, 130 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 130 डिग्री इसमें माइनस कर देंगे, ओके कितना देगा 50 डिग्री। सो एंगल बी की वैल्यू भी हमको कितनी मिल गई 50 डिग्री मिल गई। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिगर में पुट कर देते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू में कितना आया है 70 डिग्री आया है, एंगल बी कितना आया है हमारा 50 डिग्री आया है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, इस एंगल की क्यू आर एस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू आर एस। देखिए एम एन क्या, दिस इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। अगर हम इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए हमने इसको नाम एक्स दे दिया गया है, तो एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल बी, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, बिकॉज इट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन अपर साइड। ओके, सो एंगल ए एक्स और बी ये सब क्या है, तीनों एडजेसेंट एंगल है और इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ओके, सो नाउ दैट एंगल बाय स्ट्रेट लाइन एंगल, राइट डाउन बाय स्ट्रेट लाइन एंगल, look here, angle MRN, look here, angle MRN is equal to 180 डिग्री। MRN, अब MRN देखिए 3 पार्ट में, ये पार्ट ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सो एंगल A प्लस एंगल X प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A हमने फाइंड आउट किया है, एंगल A कितना है 70 है, तो पुट हियर 70, एंगल X हमें फाइंड आउट करना है, एंगल B 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 50 को ऐड कर देंगे, this is a 120 degree plus angle x is equal to 180 degree. So angle x is equal to 180 degree minus 120 degree. So angle x is equal to 60 degree. Angle x is equal to 60 degree. और angle x हमारा क्या है QRS. Okay, so we have to replace angle QRS is equal to 60 degree. So this is the answer of the given question. Now you have to complete the exercise 6.2 which have left questions on your copy. होमवर्क नोट कर लीजिएगा, you have to write down homework. You have to complete exercise 6.2, okay, on your copy and click the photo and upload on the group. Okay, so thank you very much. You have completed the works and stay in home and be safe.